आफ्टरनून। हम लोग जो ऐसा इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं आप लोगों के स्कूलिंग पर भी, तो उसी कड़ी में हम लोग आज जो मिथिला एंजल्स के जो सर्वे सर्वा हैं अरविंद झा जी, तो अरविंद झा जी आज हम लोगों के साथ हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने इस निजी कार्यक्रम में हम लोगों को समय दिए और आज जो टॉपिक हमने रखा है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम को में खुशी की बात है कि हमारे निदेशक डॉक्टर राणा सिंह जी भी हैं, तो मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो वेलकम स्पीच दें। धन्यवाद कुमार जी। हमारी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आदरणीय अरविंद झा जी, सीनियर टेक एग्जीक्यूटिव, एंजल इन्वेस्टर, मेंटर and last but not the least, founder of Mithila Angels Network. We are indeed thankful and grateful to him for spending his valuable time with us at BHub and to spare his and to impart his knowledge, skills and wisdom to all our attendee incubatees and the startup founders, entrepreneurs. We are thankful and grateful to you, sir, and we extend a very warm welcome to you with a big round of applause from all our fraternity. Just to give you a brief, he is one of the brightest souls of the Bihar economy in general and Mithilanchal in particular. I met him across in one of the hotels and I interacted with him in Methli, and it was a great pleasure to understand his entire orientation, disposition, passion and commitment towards the state of Bihar in general and Mithilanchal in particular, and also about how to create, sustain, develop, build, maintain an ecosystem of funding mechanism for the startups operating in Bihar. He has been very kind to fund some of the fast growing startups of the BHub community, which is part and parcel, which is being mentored by CIMP BIF under the dynamic leadership of its CEO, Shri Kumar Kumarji, sitting on my left. He's very passionate to provide funding to the fast growing startups. When we say funding nahi hai, it's not exactly correct. It's like how we present our growing startup is very, very important. There are large number of funding opportunities and investors, angel investors available in the country, and he is one of the most dynamic funding bodies and investor of Bihar. He has funded Roadways recently, he has funded Hanuman, which is now having a valuation of more than 100 crores. He has made series of investment in different startups, so that gives us a very strong confidence for all of the incubatees and startup founders here that there is going to be a big opportunity for all of you in the times to come, and we would give you insights as to what is being looked from the perspective of the angel investors and what is his commitment and how he looks forward to mentor all of you and to give you the direction as well as guidance and mentoring in the times to come, so that you can start walking on the way to become Bunicorn, Sunicorn and Unicorn in the times to come. With these words, we once again welcome sir. Over to you. Thank you so much, sir. Very, very kind of you to mention all these initiatives that you've done. Should I speak in Hindi? Is okay? Yeah, Hindi. 2019 से मेरा फोकस प्रॉब्ली इस एरिया में है और ड्रिवन बाय द फैक्ट कि इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं हमारे इधर, पुअर फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप लोग खुद उतर के खुद से थोड़ा सा बस क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। एक इंटरव्यू मैंने रिसेंटली बोला था कि हम लोग 2008 से जब नेशनल लेवल पे स्टार्टअप सिस्टम शुरू हो रहा था तब से नास्कॉम टाई के साथ काम कर रहे हैं, और जो 2008-2010 की स्थिति थी नेशनल लेवल पे,
वो सेम स्थिति मुझे अभी यहाँ पे बिहार में दिखाई देती है कि एनर्जी बहुत है, होप बहुत है, एस्पिरेशन बहुत है, लेकिन अभी मेच्योरिटी उतनी शायद नहीं है, या फंडर की मेच्योरिटी नहीं है, इन्वेस्टर की मेच्योरिटी नहीं है, कस्टमर की मेच्योरिटी की भी शायद प्रॉब्लम है, या लोगों को जो पोटेंशियल है वो दिख नहीं रहा है। तो इंडिया लेवल पे जो पोटेंशियल था वो किसी टाइगर ग्लोबल एक फंड है बहुत बड़ा, टाइगर ग्लोबल ने आके फंड दिखा दिया, जितने यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे VC थे, पहले भी थे, और वो सब बहुत टेंटेटिव थे, बहुत ज़्यादा उनको लगता था कि रिस्क कौन लेगा, वैल्यूएशन कौन लेगा, क्यों लेगा, उनको पूरी करना है, किसी का प्रॉफिट तो था नहीं इस समय। लेकिन टाइगर ग्लोबल ने दिखा दिया कि नहीं, आप जो है इंडिया को उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से देखो, अगर 4 साल 5 साल का देखो तो आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियाँ होना। तो जब टाइगर ग्लोबल ने रास्ता खोल दिया, उसके बाद एक कुछ बाढ़ जैसी आ गई, और इस समय 50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं अपने पास। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बिहार से भी, जो सर ने बताया, वो 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ के रेवेन्यू वाले स्टार्टअप्स, और आप सोच सकते हैं अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू होगा तो डेफिनेटली 1000 करोड़ का वैल्यूएशन शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आप में से ही इस कमरे से 3-4 उस स्थिति में पहुँच जाएंगे। आपको केवल ये देखना है कि आपका कस्टमर कौन, उस कस्टमर को आप क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस को आप कितना ग्रो कर रहे हैं, उसका जो मार्केटिंग का या उसका गो टू मार्केट का या उसका सर्विस का जो आपका मेथड है वो कितना इनोवेटिव है, क्या आप नया बना के लेके आ रहे हैं लोग के लिए, और क्या आपका कमिटमेंट है कि आप अपनी ऐसी टीम खड़ी कर लेंगे जो आपके एक तरह से रेफ्यूजीज बन जाए। जितना पैशन आपका है, जितना पैशन आपके लिए है, उतना ही पैशन अगर आपकी टीम में बढ़ता चला गया, और टीम में आप देखिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, और CIP हमारे होस्ट भी हैं, और थैंक यू वेरी मच, आपने आपका गेस्ट हाउस भी इनेबल कराया मुझे यहाँ रहने के लिए, तो और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो अगर आप उस टीम वर्क को लेके चलेंगे तो कोई रीज़न नहीं कि नहीं होगा। जब हम इस सेशन की कल्पना कर रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं, स्टार्टअप्स में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो एक किसी विषय पे बात करने के बजाय एक बार AMA टाइप का सेशन कर लेते हैं। आपको जो पूछना है आप पूछिए, और अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूँगा उसके ऊपर मेरा क्या विचार है, और कुछ नहीं आता होगा तो बोल दूँगा इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो जो भी चलेगा वो देखा जाएगा कैसे होता है। तो कैसे आप करना चाहते हैं बताइए, मैं यहाँ पे हूँ, आपके बीच में हूँ, एक डेढ़ घंटे के लिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रश्न हैं वो शुरू कर सकते हैं। You can ask one by one. You can raise your hands. But before we start, sir, we would like to share a good news. Our Kumod Kumarji today has raised the voice for all the startups community, and we are going to start one dedicated branch for startup and SME funding at CIM. आज सुबह मैं जोनल मैनेजर के साथ बैठा हुआ था, तो यहाँ से कुछ ऑडियंस थे वहाँ पे, उन्होंने इनके स्पेशल मतलब ये काफी बिहेव, और सारे स्टार्टअप्स के लिए आवाज हमेशा दिन रात बुलंद करते रहते हैं, तो उनसे वहीं पे अनाउंस करा दिया गया। आई थिंक कुछ लोग वहाँ पे थे, दे हैव विटनेस्ड इट, सो गुड न्यूज टू यू, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। और बेझिझक होके पूछें। हाँ बिल्कुल। इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं आपने और अपने वेंचर के बारे में। डॉक्टर कुमार विकास, basically I work on a venture wherein like once the place anybody gets sick till the time he is well, so that I can continue of services, provide continuing courses, and my academic team. And we are registered in the Bengal, but we are corporate of like PC space. So then हम लोग का basically we are at the prototype stage. At this stage, like Firestorm, which is CIMC, and then other like we have we got a chief control of the government. Still, that's not enough. So at this stage, what should be our approach to get more funding and more connect with the more investors at this stage? Which are the investors who's invested in this? Those who are the pre-revenue stage startup. पहले तो बधाई हो आपको कि आपने स्टार्टअप शुरू किया है, और वो भी हेल्थ केयर एरिया में, जो कि एक बहुत अंडर सर्व एरिया है हमारे क्षेत्र में, तो अच्छी बात। और अगर आप लाइफ साइकिल हेल्थ का बात कर रहे हैं कि जब भी उसका पेशेंट शुरू हुआ उसके बाद जब तक वो ठीक ना हो जाए, एक लाइफ साइकिल सर्विस आप दे रहे हैं, किसी भी तरह से दे रहे हैं, चाहे वो सब्सक्रिप्शन में दे रहे हैं या दवा दे रहे हैं, ऑन डिमांड दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि ग्रो करेगा। जैसा सब चीज़ में होता है ना, जो इंसान हम लोग जो है ना इमोशन खरीदते हैं, इमोशन बेचते हैं, और इमोशन खरीदते बेचते हैं कहानी के थ्रू, एक स्टोरी बनाते हैं उसमें। तो जब आप अपने स्टार्टअप की एक अच्छी स्टोरी बनाएंगे
और वो स्टोरी उनको सुनाएंगे जो उस स्टोरी में इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। जो एंजल फंड्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, जो इंडिविजुअल एंजल्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, CSR वाले बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं लोग इसके अंदर। ग्लोबल फंड जो डेवलपमेंट का काम करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करती है, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। और आप खुद डॉक्टर हैं, आपका एक्सपीरियंस भी इसमें आएगा उसके लिए में। जब आप स्टोरी बनाएंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं और इसके 5 साल में 10 साल में क्या चेंज आने वाला है दुनिया में, आप क्या चेंज लेके आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो सरकार ने दिया उसका 10 गुना आपको उस समय में स्टेज में मिल जाएगा, सीट से मिल जाएगा। और अगर वो ना मिले तो फिर आप जो है एक तरह से जो हम बोलते हैं डिफर्ड फंडिंग का एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि मैं अभी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ आपको कि मेरी क्या वैल्यूएशन है, मैं कन्वर्टेबल नोट में जैसे लोगों से भी पैसे ले ले रहा हूँ और उनको मैं 2 साल में 3 साल में जब भी मैं एक प्राइस्ड राउंड के ऊपर फंडिंग करूँगा उस समय में उनको कुछ डिस्काउंट में शेयर दे दूँगा, तो उनको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ जो है बेनिफिट मिल रहा है आपको आपके साथ पैसे मिल रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया इस संदर्भ में हो सकता है आपके दोस्त या हो, आपके दोस्त आपकी फैमिली में लोग हो, वो शायद आपकी में विश्वास करें। आपको कितना पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए वो भी देखना है। मुझे लगता है कि सर्विस मॉडल आपका है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड में जा सकते हैं और आप अगर अच्छी स्टोरी बना सकते हैं और अच्छे बड़े इन्वेस्टर के पास पहुँच सकते हैं जिनका कि हेल्थ में इंटरेस्ट है, तो शायद आपको वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। वो चाहते हैं कि समाज मांगे उनका लोग या नहीं, तो वैसे तो ये अच्छा प्रश्न है कि मैं लूँ ना, क्योंकि एक बार आपने किसी का पैसा ले लिया आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं आपको उस पर रिटर्न करूँ या मैं उसमें कम से कम अपना पूरा कोशिश करूँ कि उसमें डिलीवर कर सकूँ पॉजिटिव रिटर्न। तो डेफिनेटली आपको तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आपका अपना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसमें जो भवसागर है वो पार कर सकता हूँ पिछले 3-5 साल का की और दिखा सकता हूँ कि मेरे पास। और आप कंज्यूमर मार्केट में तो मुझे लगता है कि 50 से 100 फैमिलीज जब आपके पहले प्रोजेक्ट में आ जाएंगे कि हाँ ये पेशेंट मैं मैनेज कर पा रहा हूँ और वो पैसे दे रहे हैं और उस पैसे के बदले में मैं उनको एक एक्चुअल सर्विस दे पा रहा हूँ जो उनके काम की है, जो उनको नहीं मिल रही थी पहले, तब शायद आप जो है फंडिंग राउंड के लिए जा सकते हैं कि हाँ अब उसको मुझे डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। What is the quantum you are looking forward to? at this stage. Yes, Not much. 20 to 30 lakhs. There is an organization called India Accelerator, which is having virtual pitching every week. So you can try and connect to India Accelerator. They are funding at this stage. Quite a few startups in healthcare sector are being funded. There are a lot of high net worth investors who come into it. Just one, I would like to just raise a red flag. Do not take cash from anybody who's cash rich. It will distort the whole, proposition. And do not fall into this desperation कि कोई दूसरा भी वगैरह मुझे 50% equity आप दे दीजिए. Because your project is, I mean, I don't know the details, but it is looking like a very needy project, need of the hour type of project. So be patient or come out. Find the people who have the same belief in health and long-term health as you have. Yes. Any other questions? Yes, please. Please identify your name and your venture. So first of all, it's nice to meet Mr. Arvind Jha, a fellow KGPN. So I'm also from IT Kharagpur. I've gone through your profile a lot, and I am highly inspired for what you are doing for our state and for our country. So my name is Akansh, and on my left is Meenakshi. We are both co-founders of Moon Solutions Private Limited, and we are mostly an executional-based consultancy company that operates in the creative domain. So our business model is mostly B2B, and what we do essentially is solve the pain points of the businesses, small businesses, from gaining their customers to retaining their customers. All in this combines of the marketing and advertising sector as well. So my question is, since we are a service-based company essentially, at what stage should we raise funds? Because we are not at this stage we are profitable, and we can mostly run through the same revenue stream as well. But what should be my trigger point, and what key metrics should I be measuring for the funding round? Thank you. Again, thank
thank you for being very kind, especially as an alumni. So proud to see alumni. जो आप कर रहे हो ना कि स्मॉल बिजनेस को मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लस दे रहा हूँ, इसमें डिजिटल मार्केटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें आप सर्विस के थ्रू कर रहे हैं। उसमें आपको देखना है कि इसमें स्केल कैसे आएगा। अगर हम देखें कि इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस कितने हैं, मुझे लगता है करोड़ों में। और अगर हम देखें ट्रेडिशनली स्मॉल बिजनेस का जो IT स्पेंड है बहुत मिनिस्क्यूल है, मतलब 1% उनके टर्नओवर का 1% से भी कम है। अगर हम बड़ी एंटरप्राइज का देखें जैसे बैंक से इंश्योरेंस कंपनी का, उनका 10 से 12% जो है IT और डिजिटल में स्पेंड आता है। मैन्युफैक्चरिंग का उससे थोड़ा हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है। स्मॉल बिजनेस का बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मॉल बिजनेस का क्या है कि उनके पास टैलेंट ही नहीं है वो काम करने। वो जो बिजनेस कर रहा है वो आदमी वन मैन कर रहा है या फैमिली कर रही है या 2-3-4 लोगों के साथ कर रहा है, उसके पास टैलेंट नहीं है कि वो उसका जाके पूरा ERP चलाएगा, टैली चलाएगा, सॉफ्टवेयर चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, उसके पास नहीं है। आपको ये देखना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, अपनी सर्विस को प्रोडक्टाइज कैसे कर सकते हो कि वो बिल्कुल सेल्फ सर्विस में, जैसे व्हाट्सएप में सिंप्लीफाई कर दिया कि आप किसी से बात कर सकते हो। आप किसी को भी बोल सकते हो कि भाई सबसे बड़ा तो हम समझते हैं कि क्या है आपका बिजनेस है, आपको जो भी देखता है गूगल मैप में बिजनेस जो दिख रहा है गूगल मैप में, तो क्या आप सारे बिजनेसेस का एक बहुत सिस्टम बना दोगे कि वो गूगल मैप में अपना एंट्री डाल सकता है। और क्या उसको आप इतना सस्ता कर दोगे 50-100 रुपये का, हो सकता है लाखों लोग उसको खरीद लें। तो उसका प्रोडक्टाइजेशन क्या होगा जहाँ पे कि वो इस स्केल पे पहुँच जाएगा कि वो उसका स्केलेबिलिटी उस लेवल पे पहुँच जाएगा जहाँ पे पहुँचना है। जब आपके पास वो प्रोडक्टाइजेशन का फॉर्मूला आ जाएगा तो हो सकता है एक फंडिंग के लिए आप जा सकते हो कि उसके बाद आपको लार्ज स्केल मार्केटिंग की जरूरत होगी अपने लिए। केवल अगर आपको सर्विस करना है तो आपको सर्विस लेवल पे उस लेवल पे जाके सर्विस करना है जहाँ पे कि आपका ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे इतना रिटर्न आएगा। जब आप वो ROI दिखा पाओगे तभी जाके कोई आपको इन्वेस्ट करेगा। और खासकर जो स्टार्टअप इन्वेस्टर है, हर राउंड में स्टार्टअप इन्वेस्ट की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, लेकिन आप सोच लो कि वो अपने जो पैसा लेता है, जो इन्वेस्टर जो फंड क्रिएट करता है, वो कम से कम 15-18% रिटर्न का प्रॉमिस करके करता है। और उसके ऊपर भी वो बोलता है कि आपको मैं कैरी जो भी है उसका बोनस पर तो 20-22% का रिटर्न का लोग एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। इसका मतलब है उसके पास कम से कम 7x, 8x, 10x की वैल्यूएशन नहीं आएगी तो आपको शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जब वो उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, मुझे लगेगा कि 12 टाइम्स मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, तब शायद आप सर्विस बिजनेस में जा सकते हो। या अगर आपको लगे कि नहीं मैं यहाँ पे हजारों लोगों की टीम बना दूंगा ये काम करने के लिए, जो IT आउटसोर्सिंग में पहले बार जो आज हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में लाखों लोग काम कर रहे हैं और उनका बिलियंस ऑफ डॉलर में रेवेन्यू है या वैल्यूएशन, तो उस स्केल पे जब आप जा पाओगे तब शायद सर्विसेज बिजनेस में फंड रेज करेंगे। आपके पास क्लैरिटी हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो दिक्कत यह है कि इस प्रॉब्लम में डिजिटल मार्केटिंग वाले साइड में या मार्केट साइड में हजारों, ऑलमोस्ट रेड ओशन जैसा है, आप जहाँ पे हाथ डालोगे वहाँ पे 5 बंदे मिल जाएंगे, ऐसा है। तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा कि मैं किस एरिया में जा रहा हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ जो कि यूनिक है। That point, so हमारा जो है वो only tech वाला साइड नहीं है. So what we do is essentially help a small business grow. इसमें हमारा डेटा के साथ लेके execution included है. For example, if a new cafe opens up in Patna, so what are their requirements? They require first of all the outlet, उसका डिजाइनिंग कैसे होता है, ब्रांडिंग कैसे होता है, तो उसका end to end solution, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट वाला भी पार्ट है. तो प्रोडक्ट भी गिव देम द कंसल्टेंसी एंड वी टेल देम कि ये चीज़ जो फॉर एग्जांपल वी डू नॉट नो, वी हैव द कनेक्शंस जहाँ पे हम उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को. एंड इसके अलावा डेटा को यूज़ करके व्हाट आर द टारगेट मार्केट्स, कहाँ पे आपको ऐसे कर सकते हैं, ये सब हमारा मोस्टली काम है. एंड जो प्रोडक्ट वाला सेक्टर सर आपने बोला, तो प्रोडक्ट वाला सेक्टर जो मोस्टली हमारा ये सब साइड में है ना, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट है. सो अगेन इसमें और बहुत कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है. फॉर एग्जांपल यू नीड हेवी मशीनरी एंड ऑल. So what do you suggest? Should we invest in that or should we invest in outsourcing these things? So invest in something that helps your customer and invest in something that scales the business. So business consulting typically not highly scalable because you know आप 4 लोग 10 लोगों की टीम बनाओगे तो कितने कस्टमर हैंडल करोगे, तो आपका लीनियर ग्रोथ होता जाएगा, तो जितने कस्टमर होंगे उतनी बड़ी टीम होती जाएगी. That doesn't sound like it is going to be scalable. You have to think कि आप उसमें क्या सेल्फ सर्विस दे सकते हो ताकि लोगों का बहुत बड़ा स्केलेबिलिटी. दिस इज योर चैलेंज.
बट अभी आप कर रहे हो, अभी और काउंट करोगे जब आप कितने कस्टमर हैं आपके साथ? 50+ है। हो सकता है आप थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि उन सब कस्टमर की 70% टाइम ये रिक्वायरमेंट होती है। जो 70% टाइम रिक्वायरमेंट है उसको प्रोडक्टाइज करो, उसको ऑटोमेट कर दो, एक तरह से उसको सेल्फ सर्विस बना दो, वो शायद फ्रेमवर्क काम करता है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ सर, जयंत कुमार, स्टार्टअप नेम नीटेक एकेडमी, एटेक प्लेटफॉर्म पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग जो स्किल्स कोर्स है लाइक पाइथन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीज़ें, कैटिया हो गई, इथिकल हैकिंग हो गई, इन सब कोर्सेज को हिंदी में लोकल लैंग्वेजेज जो बिहार के बच्चों के लिए ला रहे हैं। इसमें से बहुत सारे कोर्सेज हम लोग का भी ऑनलाइन लर्निंग चल भी रही है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे भी अभी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय लेके जुड़ रहे हैं, क्योंकि होती है कि सारी स्किल्स कोर्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी अच्छे कंटेंट में होती है और अच्छे चार्जेज होती है। लाइक हम अगर इथिकल हैकिंग की बात करें तो एक ही कोर्स आती है 30,000 to 50,000, फुल स्टैक डेवलपमेंट की कोर्सेज आती हैं ऑलमोस्ट 50,000 प्लस। लेकिन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द रेंज जो बिहार के बच्चे को 5 to 10,000 में, और विद इन लोकल लैंग्वेज हिंदी में, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनके कंटेंट होती है। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है, हम लोग के माइंड में एक ही चीज आता है, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितनी इक्विटी लेते हैं। बेसिकली आई डोंट नो व्हाट दैट, सो दैट आई एम आस्किंग कि इन्वेस्टर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितनी इक्विटी मांगते हैं और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता है। इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, सो दैट आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा है आपका लैंग्वेज में ट्रेनिंग करने का अच्छा है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर्स मेनली हम लोग भी बिहार इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही थी। जब हम लोग भी कोर्स कर रहे थे, हम लोग को स्किल सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो सो दैट कि इनको एक सोल्यूशन के रूप में बनाया जाए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम लोग लॉकडाउन के समय से ही इन पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन लॉकडाउन के बाद एक फंड रेज के कारण कुछ बहुत बेसिकली हम लोग लॉकडाउन में इथिकल हैकिंग पढ़ाए थे, जो कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, गुजरात की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों, लगभग 50+ स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लेके जूम पे पढ़ाई किया था लॉकडाउन के समय। आफ्टर देन हम लोग उन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में किए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, अभी 1000+ स्टूडेंट्स हमारे बेस में है और अभी वर्किंग चल भी रही है। और बिल्कुल सर को हम फॉलो भी करते हैं यहाँ पे। हाँ, सर का भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप के क्षेत्र में देखा है। देखिए, इन्वेस्टर जो होता है वो इस तरह सोचते हैं कि अगर हम 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है 7 बिल्कुल खराब हो जाए, 2 हो सकता है एवरेज रिटर्न हो, एक बिल्कुल मेरा 10 टाइम्स रिटर्न या 20-20 टाइम्स रिटर्न हो गया। तो एवरेज मेरा मैंने कमिट किया अपने इन्वेस्टर्स को, उसको उतना मिल जाए। तो वो तब आएगा जब आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी का मोटा इक्विटी है, बड़ा इक्विटी है, ठीक है। तो हमने जो देखा है अर्ली स्टेज राउंड में वो हमेशा ट्राई करेंगे, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या बड़ा जो चेक मान लीजिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ का जो चेक साइन करेंगे, उनका कोशिश होगा कि 26%, 20%, 16%, 16 से 26% वो ट्राई करेंगे लेने का फर्स्ट राउंड में। अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली जाएंगे तो आप 2% भी कर सकते हैं, 8% भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है उसमें। उसके नीचे अगर थोड़ा सा उसमें हमने 10% का राउंड भी देखा कि 10% लोग कोशिश करते हैं कि 10% का राउंड हम लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1,000 कस्टमर है और 8,000 9,000 रुपये दे के आ रहे हैं, आपका रेवेन्यू है और आपके पास ग्रोथ है और आपके पास स्किल है जो कि बाहर मार्केट में नहीं है। मान लीजिए अभी आप इंग्लिश हिंदी में कर रहे हैं, आप थोड़े और लैंग्वेजेस एक्सपर्ट आए तो गुजराती मराठी सब में शुरू कर देते हैं, तेलुगु सब में शुरू कर देते। आपका अपना ग्रोथ और आपका अपना स्किल डिटरमिन करता है कि आप कितना बड़ा इक्विटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते और आप कितना नेगोशिएट। एक बार इन्वेस्टर को समझ में आ जाए कि इससे मुझे फायदा होने वाला है, मैं इससे पैसे बनाने वाला हूँ, फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और जब तक वो समझ में आ जाए तब तक वो हमसे नेगोशिएट करता है। तो ये एक मार्केट नेगोशिएशन का गेम है एक तरह से, और उसको पर्सनली नहीं लेना, उसको बिजनेस की तरह ही लेना है। मैं ऐसे नेगोशिएट करता हूँ 2 to 3 करोड़ पे लगभग 16 to 26% मैं आपको बताता हूँ इक्विटी। एक कहानियाँ मजेदार होती हैं कि दिलखुश का जब हम कर रहे थे तो हमने वैल्यूएशन कराया, एक प्रोफेशनल सीए बॉडी है उससे वैल्यूएशन कराया उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से, उनके 3 साल तक क्या प्रोजेक्शन है उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो वगैरह करके आज क्या होना चाहिए, करीब 8 करोड़ की वैल्यूएशन। उन्होंने बिहार में 8 करोड़ कोई नहीं देने वाला, इससे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने उसको आधा कर दिया कि हम 4 करोड़ की वैल्यूएशन। उसमें बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी प्रोफेशनल हैं और स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उनका कहना था कि अभी तो उनका 6 महीना पहले शुरू ही हुआ है तो कैसे 4 करोड़ की वैल्यूएशन हो सकती है।
वो आगे का जो 3 साल का प्रोजेक्शन है वो नहीं देख रहे। तो अगर आज की स्थिति में बताइए मुझे क्या होना चाहिए, तो आज की स्थिति में तो उनका कुछ भी नहीं था, 4 लाख रुपये भी उनका रेवेन्यू नहीं कमा थी, क्या उसका वैल्यूएशन था। तो ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो वैल्यूएशन के नाम पे एक तरह से आपके साथ डांस करेंगे। आप अपने साथ डांस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपकी कितनी स्थिति, कितना डेस्परेट है। जैसे विजय शेखर शर्मा ने मुझे बोला एक बार उनको कुछ पैसे की जरूरत थी और कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, तो और उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया इसके ऊपर। चांदनी चौक में किसी फाइनेंशियर ने उनको कुछ पैसे दिए और उसके बदले में मोटा इक्विटी उन्होंने ले लिया, और बाद में विजय ने शायद करोड़ों में वो इक्विटी वापस खरीदी उनसे। तो समय बड़ा बलवान होता है, आप बलवान है या आप इन्वेस्टर बलवान है वो देखना पड़ेगा। बट मॉडरेट मतलब टिपिकली प्रोफेशनल आप देखेंगे तो 10% का राउंड हो सकता है, 10% से कम में शायद कोई नहीं माने, और अगर बड़ा चेक होगा तो वो 16% से लेकर 26% तक ट्राई करें। जो कुछ थोड़ा ज़्यादा ग्रीडी इन्वेस्टर होता है वो 30% भी करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का तो कुछ चाहिए कि जितना मुझे मिल जाए उतना अच्छा। थैंक यू। ओके। Good evening to everyone. Thanks for organizing such a session. So my name is Manish, and I have completed my law degree from Central University and LLM holder from National University. So ऐसे तो मैंने लॉ किया है, बट मेरा बिजनेस से कहीं कोई दूर तक का रिश्ता नाता कभी रहा नहीं है। बट पिछले 1-1.5 साल से I and my co-founder has started a startup investment platform. Basically that is the name of that startup is Yuva Invest, और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वैशालिका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो यहीं पे रजिस्टर्ड है। सर एक्चुअली वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग a platform for both the investors and the startups to come at our platform and get जो भी आपको कटिंग चाहिए वो है। तो सर अभी एक्चुअली वी आर डेवलपिंग आवर वेबसाइट, हमारा वेबसाइट डेवलप हो रहा है फ्रॉम लंदन हेडक्वार्टर टेक कंपनी। लेकिन सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग 2 ही आदमी हैं इसमें भी साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग दिन भर का अपना मीटिंग शेड्यूल करते हैं कि हाँ आज हम लोग को इस पे काम करना है, कल इस पे काम करना है, बट वो आधे दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी वो मेरे से कॉल करके पूछते हैं कि और कुछ बताइए मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं इस बिज़नेस के बारे में। देन मतलब मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि मेरे बिजनेस के लिए हम क्या कर सकें, और सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, बट फिर भी हमारे पास आइडियाज़ नहीं आते हैं। तो इसमें सर हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने इस पर अराउंड 12 to 15 लाख हमने खर्च भी कर दिए हैं अपना। हमारा वेबसाइट भी अभी बन ही रहा है, इन द नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली वो डिलीवर हो जाएगा हम लोगों को फुल प्लेस। तो सर ये हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वी डो नॉट हैव एनी एडवाइज़र जो हम लोगों को एडवाइस कर सके कोई ऐसा, तो हम लोग कहाँ से लैग कर रहे हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन क्योंकि यही बात जो है सारे मार्केट प्लेसेस या मैच मेकर्स बोलेंगे। जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो यही बोलेंगे कि हम और कहाँ से कस्टमर लेके आए या ट्रेनिंग लेके आए। आपके जो कस्टमर हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं वो शायद स्टार्टअप्स होंगे, तो स्टार्टअप की क्या नीड है उसको आपको समझना है कि उनको क्या नीड है और मैं कैसे उसको फुलफिल करता हूँ। अगर उसकी फंडिंग की नीड है तो फिर आपको एक तरह से जो फंडिंग साइड है उससे रिलेशनशिप बना के रखना है, उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है कि भाई उनको क्या चाहिए, उनका क्या इंटरेस्ट है। और मुझे लगता है जैसे अगर आप बिहार में हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिहार में अभी तक और नेशनल लेवल पर काफ़ी शुरू हो गया। एक जब से रतन टाटा जी ने शुरू किया इन्वेस्टमेंट का काम स्टार्टअप्स में, तो जो बिग कॉर्पोरेट लोग थे या हम देखते हैं कि जो बिग सेलिब्रिटी लोग थे उनका भी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, और उन्होंने एक फैमिली ऑफिस का कॉन्सेप्ट बना दिया कि एक फैमिली ऑफिस के थ्रू हमारा जो कॉर्पस है कैपिटल का उसको हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है, डेटा नहीं है मेरे पास, कि बिहार में जो उस तरह के धनी लोग हैं जिनके पास एक तरह का वेल्थ कैपिटल है वो शायद अभी भी स्टार्टअप के प्रति उदासीन है। तो आपके पास अगर वो एबिलिटी है कि आप उनको पिच करके प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कह सकते कि नहीं आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने में, जैसे आपने लैंड खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, कॉर्पोरेट किया, शेयर किया, गोल्ड किया, हो सकता है आप 1-2% अपना वेल्थ स्टार्टअप में डालना शुरू करें और हम आपको अच्छे स्टार्टअप लेके आएंगे, प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है उससे आपका जो एक सप्लाई साइड है, आपका फाइनेंशियल सप्लाई साइड ठीक हो जाए, उसके बाद स्टार्टअप्स तो आपके पास आ ही जाएंगे।
तो आपको किसी भी एक वेरिएबल को अपना के उस वेरिएबल में एक यूनिक एक्सपर्टीज लेके आनी है। जब आपके पास वो यूनिक एक्सपर्टीज आ जाएगी तो फिर आपका मार्केट चलेगा। अभी आप रेगुलर मिल ऑफ द वर्क कर रहे हैं कि हमने एक मार्केट प्लेस बना दिया, तो उससे अच्छा था अगर आप चाय की दुकान खोल लेते तो शायद वहाँ पे लोग आके मिल लेते और आपका पैसा भी खर्च नहीं होता, पैसा उल्टा होता। तो आप थोड़ा सा आप सोचिए कि उस वो जो आप मीटिंग ग्राउंड बना रहे हो उस मीटिंग ग्राउंड की क्या बेसिक डिफरेंशिएशन, वो काम कहीं और क्यों नहीं हो सकता, वो भी में क्यों नहीं हो सकता वो काम। Just to supplement him, probably, well, we are a co-working space here. If you get attached to an incubation center which has a holistic ecosystem from the pre-incubation stage, rather the idea stage, pre-incubation stage, post-incubation stage, then your proof of concept, then your IPR, then your commercialization of your service. So probably what I would suggest, you should get attached to an incubation center which has this holistic framework, which has multiple mentors of diverse background who come from tech, who come from finance, who come from consulting and other allied ecosystems from India and abroad. So you can get the right, it's like you have to reach a mall wherein you can get everything of your taste. I hope you understand, and probably any incubation center in this city who is best equipped will actually help you in a better position, because sometimes you require some high-end technology which can actually help, because India has multiple aggregator models. Let's talk about Policy Bazaar for that matter, because it's under the dynamic leadership of Sanjeev Bikhchandani, who's also a serial investor for that matter. Naukri.com, people who are seeking jobs, people who are granting jobs. So you are like yet another aggregator, people who are getting funding and people who are seeking funding. But then there are a lot of financial aspects associated. So somebody can guide also pertaining to the compliances, funding, technology, security of the website, and so on. So maybe you can contact Kumoji and he'll be able to guide you better and connect you to the right set of people from technology, business, finance, fintech, and all of the allied sectors. I hope I could address your query, if not answer it. नमस्कार। अरविंद जी सर, हमारे पहले ग्रुप के जिंदगी में नौकरी लेने पहले भी थी मुझे एक राउंड में बात सर, और सर के साथ हमने मटेरियल हाथ डिस्कस भी कर रखा। सर एक क्वेश्चन आपका इन्वेस्टर की तरफ से कि एग्जिट क्राइटेरिया, तो एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब आप लोग क्या देखते हैं कि बढ़िया एग्जिट क्राइटेरिया किसको कहते हैं? बढ़िया है जो इन्वेस्टर को पैसा वापस दे दे और उसका रीजनेबल रिटर्न दे दे, वो बढ़िया है। और तब मतलब एग्जिट की तरफ तब पुश करते हैं जब लगता है कि अब ये स्टार्टअप ग्रो नहीं कर रहा है जिस तरह से ग्रो करना चाहिए, और जो वैल्यू बिल्ड होनी थी वो वैल्यू हो गई, और इसके बाद हो सकता है वैल्यू अब नेगेटिव हो जाएगी। वो इसलिए हो सकती है कि उसका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हो गए, उस मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया जो कि उसको उसका मार्केट शेयर कम कर दे रहा है, या उसका जो प्रेफर्ड था वो कम हो गया, या वो इतना पुराना हो गया टेक्नोलॉजी वाइज कि अब शायद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, या जो फाउंडर था उसका आप इंटरेस्ट नहीं क्योंकि उसके पास पैसे आ गए, उसका एक कंफर्ट जोन में आ गया, तो हो सकता है कि उसको मतलब किसी और को दे दे। टिपिकली इंडिया में इस समय में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एग्जिट्स अभी नहीं दिखाई देंगे। मतलब हम जब पढ़ते हैं न्यूज़ बाहर से US से, हम देखते हैं किसी ने 2 मिलियन में, 5 मिलियन में, 10 मिलियन में, 25 मिलियन में कंपनी बेच ली। हम यहाँ नहीं सुनते कि 2 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10 करोड़ में कंपनी बिकी है, ऐसा सुनते बहुत कम है। बड़ी न्यूज़ आती है, शायद छोटी न्यूज़ अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा मैच्योर होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि 5 करोड़ 10 करोड़ में लोग कुछ बनाएंगे, कुछ वैल्यू होगा, उसके बाद जो है बड़ी कंपनी उसको एक्वायर करेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अब जैसे अगर आप स्पिनिंग द व्हील्स स्टेज में आ गए कि आप मेहनत के रहे वहीं पे हैं, 7% 8% का ग्रोथ रेट है या कुछ भी नहीं है ग्रोथ रेट फॉर एग्जाम्पल, तो शायद फिर आपको देखना चाहिए और आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखना चाहिए कि एग्जिट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट कर दें, कोई कंसल्टेंट अपॉइंट कर लें जो किसी बड़ी कंपनी को एग्रीगेट कर देगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपकी वैल्यू बनना। रिमेंबर स्टार्टअप में हम बोलते हैं कि जो स्टार्टअप फाउंडर है उसका सारा पैसा वैल्यूएशन में फंसा होता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत मोटा पैसा सैलरी ले रहे हैं, तो जब तक आपका एग्जिट नहीं होगा तब तक आपके पास भी शायद लिक्विडिटी नहीं आएगी। तो अगर आप थक गए मान लीजिए या मेंटली थक गए मान लीजिए, हो सकता है एग्जिट
ओके सर, क्वेश्चन मेरा एक वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन था इन्वेस्टर का एग्जिट और मेरा एग्जिट। इन्वेस्टर जो फंड बनाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं समझ गया, सॉरी। जैसे अगर मैं मान लीजिए 200 करोड़ का फंड बनाऊं, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोलूंगा कि मैं 7 साल में आपको पैसे रिटर्न दे दूँ। तो अब मेरा है पर्पस है कि 200 करोड़ मैंने ले लिया, अब मैं फटाफट उसको इन्वेस्ट करूँगा, ये जो भी मेरी रहती है थिंकिंग उसका। लेकिन 7 साल में मुझे रिटर्न करना है, तो जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उनको मैं पुश करूँगा कि आप मुझे एग्जिट दो। एग्जिट कैसे दोगे? या तो आप आईपीओ में जाओ या आप किसी को कंपनी को बेच दो, ताकि मेरी लिक्विडिटी हो जाए, ताकि मैं अपने इन्वेस्टर्स को उस फंड का पैसा वापस करूँ। तो ये देखना आपका बहुत जरूरी है कि जो आपको इन्वेस्टर पैसे दे रहा है उसको कितना प्रेशर है एग्जिट करने का। पता चला कि आपने पैसे लिए और अगले दिन से बोलने लगे कि आप बेच दो, तो ये उसका हमेशा फंड के साथ में ही लगा होता है कि वो कब तक वो एग्जिट देना। Just to supplement his thoughts, wonderfully said. There was a company in US called Baby Center. So somebody was running, it was a technology portal, giving more and more ideas about baby and neonatal health to pregnant women and so on. So the portal was able to generate very little amount of money through, advertisement on portals, through Google AdSense and so on and so on. But when there was an investor who partnered a deal with Johnson & Johnson, so Johnson & Johnson could understand with this kind of portal and with this kind of traction of people, I can sell products of baby care worth billions, and I mean it. So then probably for an investor perspective, he says fine, you are able to generate X, 3X, 4X, at max 5X. But the moment it gets taken over by a company like Johnson & Johnson, the kind of revenue outcome would be phenomenal. And if the company is making a lot of money, it makes better sense. So sometimes it's a function of, if it is under your leadership, if it's generating X valuation. The moment that there is a change of leadership, the valuation goes manifold times, it becomes, let's say, 25X. So that also is a turning point, and I think that's just to supplement. Thanks. That is for our exit or our acquisition. Yes. When we get acquired by somebody, some well-known brand. Absolutely. And then there might be a third party, consulting firm which is actually masterminding this acquisition. Because sometimes you don't understand the value of your own portal. But for you the value may be very less. But then for a third party vendor, say Baby Center was having lakhs of, millions of women coming to that portal and getting guidance. And Johnson & Johnson could understand value. So there was a deal worth billions, and so it's like exit option. For you, the profitability may not be very high, but for somebody who acquires it, may make billions out of it. So then, sometimes as a seller, as a company, you may not have that perspective. But then somebody who's a negotiator will understand what is the value out of it, and then that's all about negotiation tactics. And then across the table when you sit, because he's sitting with a lot of organizations before he's making investment. That's it, thanks. Convertible notes. What is the convertible notes? A convertible note is a kind of a legal instrument, financial legal instrument, where you are taking money from somebody with a promise that I'll convert it to equity at a later date, at a later defined value, with some boundary conditions कि अगर इतना नहीं हुआ तो इतना होगा, इतना नहीं हुआ इतना होगा, which is time related and value. तो आप बोल सकते हो अगर 3 साल में मैं फॉर एग्जांपल प्राइस राउंड कर दूंगा तो इतने वैल्यू पे हो जाएगा, अगर मैं 5 साल में करूंगा तो इतने वैल्यू पे होगा, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो इतने वैल्यू पे. तो एक तरह से वो deferred equity का एक राउंड. And in fact, in India, Reliance was the first one to mastermind, because even in convertible, they came with Reliance Petroleum and RPEL and RPPL. Long back, I'm talking about. ELU-PILU was the buzzword for this. So they came up with Reliance polypropylene and polyethylene. So they came up with OFCD, optionally fully convertible debentures. So if you want, you convert fully, you keep debentures, you keep equity, you keep part equity. So it's like the way financial modeling is done is very different. So now throughout the world, pioneering has happened, but in India it was. So you can always, it's in your best interest. If you see the business is growing at a phenomenal rate and you are in a position to pay debt interest, fine enough. You pay debt interest and don't keep your equity with you. But if you see that, look, your cash flows are not good enough to pay back, debt interest. So sometimes you have to strike a balance. If you have sufficient money, keep paying interest, keep it in form of debt. But if you see that, no, I don't have current cash flow, but in future it may grow. So in that case, it's better to part with equity and keep your financial liabilities to the least. So you have to understand your cash flows and accordingly take a decision pertaining to it. Thanks. If somebody is asking for the potential shares,
what are the pros and cons? Giving or not giving? It will have to depend, and we can take legal advice on क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए. It will have to depend. Every new round of investor will have preference over the old investor. Seed investors, Series A, Series B, Series D, Series B, ये भी आपको चलेंगे. The last round investors will have the highest preference because they have to pay first. So it's an unrolling kind of effect. So preference is very important, and many cases are there. Lawyers get different side. Just to supplement his answer, you know the sequence of the commitment over the finance. Your first liability is to pay the interest to the debenture holders, and then the next liability is to pay to the preferential shareholders. And still, if you're left with some cash flows, only then you can accrue some payment in form of dividend to equity shareholders. So if somebody who's asking for it, he knows that he would have the second ranking in priority in terms of getting the cash flow. So if you're very sure that, look, my funding means like my cash flows are more secure, you're confident about your cash inflows, in that case you are comfortable to give preferential shares. But the moment if you're on the dilemma, maybe I'm not very sure of my cash flows, you can avoid giving preferential shares because then you'll be left with nothing to offer to any of your equity shareholders. It all depends on your equity structure. It's on a case-to-case basis. We can't have a generic answer to this. Thanks. Yes, ma'am. मेरा नाम रचना प्रियदर्शनी हुआ. मेरा स्टार्टअप कंपनी योर हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड. ये बेसिकली वी आर प्रमोटिंग बिहारी कल्चर, बिहार folk and art through our products. बेसिकली बिहार हेरिटेज, वी प्रमोटिंग बिहार हेरिटेज. सर मेरा सवाल ये है, हम अक्सर जब ये स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी जितने भी सवाल आए बहुत सुनने के ध्यान से इन्वेस्टिंग की बात आती है, फंडिंग की बात आती है, एंजल इन्वेस्टर्स की बात आती है. क्या जो हम मोस्टली हम लोग में से सबको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की ओर से फंड मिले हैं, किसी को 10 लाख मिला, किसी को 25 लाख मिला, किसी को 5 लाख मिला, जो भी, बट हमें फंड मिला है एज पर आर जो हमारा प्रेजेंटेशन था उसके अकॉर्डिंग. नो डाउट कि मनी बिगेट्स मनी, बट मनी ऑल्सो ब्रिंग्स टेंशन, हाइपर टेंशन एंड समटाइम्स सोसाइटिकल टेंडेंसी ऑल्सो. तो क्या हमें ऐसा क्यों नहीं कुछ बताते कि लाइक अगर मेरे पास 10 लाख का फंड है तो हाउ कैन डू आई बिजनेस, मतलब मनी रोटेशन कैसे कर सकते हैं, जो फंड हमको मिला उसको रोटेट करके अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन कर सकते हैं. बिकॉज स्टार्टअप इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, स्टार्टअप इज अबाउट आइडिया, अबाउट पैशन, अबाउट सम मोर थिंग्स. तो हमको जो है ये आप मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, इवन यहाँ पे जो सर लोग बैठे हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करूँगी, हमें ये बताया जाए जो हमें 10 लाख मिला है उसको हम 20 कैसे बनाएं. पहला सवाल ये. दूसरा कि अगर जो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमको बिजनेस करने के लिए हमेशा आपको इन्वेस्टर्स की या बड़े बड़े फंड की, करोड़ों के फंड की जरूरत है. डिपेंड अपॉन कि आपका वेल्थ फंड क्या. मैं ये मानती हूँ अब तक 10 लाख का जो हमें फंड मिला, हमारी कोशिश है कि हम उसमें से कुछ पैसे को अपना सिक्योर करते हुए जो मनी हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको रोटेट करके अपना बिजनेस हम जनरेट कर सके. हमारी कोशिश ये है, क्योंकि आज अगर हम फंड लेंगे तो जाहिर सी बात है कल उसको रिपे करने का एक अलग टेंशन होगा. कई बार रिपे नहीं कर पाएंगे तो हमारे बहुत सारे बैंक जो है बहुत सी चीज़ों को सीज कर देगा या और भी कई सारे अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स होंगे. तो हमको एक तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी. मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि आप इसमें मास्टर प्लेयर है सर, तो क्या ये आइडिया सही नहीं है अगर मैं ऐसा सोचती हूँ. और दूसरा कि क्या हमेशा इन्वेस्टर से, जैसे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जैसा मैं जानती हूँ जहाँ तक कि आप जितना फंड मार्केट से लेते हो, जितना आपको इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स को आप जितना आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो अपनी बिजनेस के लिए, आपका रैंकिंग उतना बढ़ता है. ऐसा मुझे मतलब मुझे पता है. तो क्या ये सच है कि आपका फंड और आपके इस पे डिपेंड करता है आपका रैंकिंग, और क्या रोटेशन बेस्ड जो है मार्केटिंग क्या ये सही नहीं है या इसमें कुछ कमियां हो सकती है, तो मुझे काइंडली वो बताएं सर. ट्रिक क्वेश्चन है, गूगली वाला क्वेश्चन. देखिए पहले हम ये मानेंगे कि जिस टीम ने आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट किया और आपको पैसे दिए वो ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं कि क्या आप उस पैसे को कैसे स्पेंड करेंगे, आपके पास आइडिया है, उसमें से क्या आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे और सेल्स बनेंगी, प्रॉफिटेबल बनेंगी, आपके पास आइडिया है या नहीं. तो फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग उसके लिए शायद की होगी जब आपका इंटरव्यू हुआ होगा या आपका एनालिसिस किया होगा कि आप करेंगे क्या उस पैसे का, है ना. एक हम हमेशा पूछते हैं कि इस पैसे से आप करने क्या वाले हो और उससे क्या रिटर्न होने वाला है, उससे क्या होगा.
फंडिंग की जरूरत कब होती है? जब आपको लगे कि आपके पास कस्टमर तैयार है और आप उसको मीट नहीं कर पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और बिल्कुल बेहतर उन्हीं का एग्जांपल दूँ। अब उनका बहुत PR हुआ पिछले महीने, मतलब जितने बड़े नाम ले सकते हैं आप, सब सारे वेबसाइट्स में, पोर्टल्स में, न्यूज़ में दिलखुश कर रहा। तो उससे क्या हुआ कि सारा का सारा डिमांड अब दिलखुश के ऊपर आ गया। जो कस्टमर है सारी दुनिया से 1.5-2 लाख लोग उनका नाम सर्च कर रहे हैं, रिव्यूज का नाम सर्च कर रहे हैं। उनके पास इतनी गाड़ियाँ नहीं कि मीट कर सकते हैं। आज अगर उनके पास फंडिंग होती तो अपनी गाड़ियाँ डाल लेते, वो कस्टमर का डिमांड मीट कर लेते। अगर आप उस स्थिति में है कि आपके पास डिमांड है और आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आपको ये लोग फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, उसके लिए कैपेक्स चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए। अगर आपको अब नहीं है सिचुएशन और आपको कॉन्फिडेंट है कि आपका बिजनेस वैसे चलेगा, तो जीरोधा का एग्जाम्पल सब लोग लेते हैं। उसने कभी फंडिंग नहीं ली, 2000 करोड़ का प्रॉफिट है उसका, क्योंकि उसने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू इतना बड़ा मार्केट बना लिया अपने लिए कि फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ज़ो का नाम लेते हैं, बहुत कम फंडिंग हुई है ज़ो में, वो भी यूनिकॉर्न कंपनी हम मानते हैं उसको। तो फंडिंग इज नॉट द सोल्यूशन। फंडिंग के लिए जो रैंक बढ़ जाता है, जिसको आप बोल रहे हैं रैंक बढ़ जाता है, वो केवल ये बताता है कि उस बिजनेस में कुछ लोगों का विश्वास है कि ये बिजनेस एक जेन्युइन बिजनेस है, या इस बिजनेस जो है ग्रो कर सकता है, या इस बिजनेस की इतनी वैल्यू हो सकती है। वो भी प्रूवन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास है। और जब बड़ा राउंड ऑफ फंडिंग होता है या बड़ा इन्वेस्टर फंड करता है, इसका मतलब है कि इसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का विश्वास है इसके अंदर, है ना। तो वो विश्वास की वजह से उसका रैंक बढ़ जाता है कि आपने एक ऐसा आइडिया लाया, जैसे डॉक्टर साहब का अगर फंडिंग हो जाती मान लीजिए $2 मिलियन, तो जैसे होम केयर एंड हेल्थ 5-6 साल पहले बहुत फेमस हो गया था, उस तरह से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एक फेमस कैटेगरी बन जाएगी, और उस कैटेगरी में वो लीडर बन जाएंगे। तो वो एक थॉट लीडर बन जाएंगे उस कैटेगरी में, उसकी वजह से उसका रैंक होगा, जो मीडिया में रैंक होगा, जो दूसरे नाम। तो रैंक होना कोई बुरा नहीं है। स्टार्टअप में हम ये मानते हैं कि स्टार्टअप का जो फाउंडर है उसका ब्रांड और जो बिजनेस कर रहा है उसका ब्रांड इक्वली पावरफुल है। अगर आपका अपना पर्सनल ब्रांड है तो आपके स्टार्टअप को उसका डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। तो बुरी बात नहीं, उसको आप नेगेटिव मत सोचिए, उसको आप पॉजिटिव सोचिए कि अगर रैंक मिल रहा है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए उसको। और अगर आप इंटरनल एक्रूवल से सबसे बेस्ट जो है वैल्यूएशन बनाने के लिए कि आप कस्टमर से पैसा लेके अपना बिजनेस बनाए, प्रॉफिट चलना, अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक उससे बेस्ट। सर रचना का जो प्रॉब्लम है उसको मैं बिल्कुल बोलूँ क्या सर प्लीज। जैसे कि हेरिटेज पर एक काम कर रही हैं और उससे रिलेटेड आप आइटम है और भी जो आइटम है उसको सेल कर रहे हैं। जैसे कि सुबह आपसे बात हुई थी, जो हमारे उद्यमी हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है मार्केटिंग। इनका जो शॉप है वो एक दूध वाला जो है दही बेच रहा है, जहाँ पर छेना बिक रहा है, उनके जगह इनका शॉप है। हेरिटेज पर अगर मार्केटिंग कर रहे हैं वो जगह नहीं है, हालांकि इनको एक स्टेशन पर भी मिला है क्या। तो आप जब हेरिटेज पर काम कर रहे हैं तो हमारा जो बिहार है वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, महावीर से जुड़ा हुआ है, जैन और बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, सिख से जुड़ा हुआ है और हिंदू सर्किट भी है वो। तो आप ऐसे जगह को चुनिए जहाँ आपके ऐसे पर्यटक आते हैं जो आपके आइटम को खरीद सकें और उसको ले सकें। दूसरी बात है कि आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन कीजिए जो ब्लेंड भी हो, मतलब पुराना जो आपका जो परंपरागत है उसको फिर मॉडर्न थोड़ा सा दीजिए। जैसे आप टी शर्ट अगर डिजाइन करके बेच रही हैं तो आप अपने बुद्ध को किस तरह से इसको प्रिंट करें जो यंग जनरेशन जो है उसको पहन सके और लगे कि हम फंकी भी है और वो थोड़ा सा मॉडर्न जो है और पुराना जो उससे जड़ से जुड़े हुए भी हैं। तो इनका क्या था कि हमारा जो 10 लाख रुपया मिला है उसको कैसे 20 कर दें। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, लोकेशन की जरूरत है कि आप कहाँ बेचना चाहते हैं, आपका टारगेट ग्रुप कौन है, आप किसको बेचना चाहते हैं, आप उसको किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जिसको एक उद्यमी को समझना पड़ेगा, तभी वो आगे मार्केट में टिक पाए।
थैंक यू। Thank you, sir. Thanks. I would just like to supplement, madam. First thing first, let me correct some statistics which we are talking about. किसी को 5 मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 25 मिला, 25 किसी को नहीं मिला, सबको 10 ही मिला। नहीं तो कई लोग परेशान होंगे कि मेरे को 10 ही क्यों मिला? कितने लोग परेशान होते? Be honest to your cause. Don't share such stats. Number 2, आपने बात की जो 3-4 शब्द बोले आपने, टेंशन, हाइपरटेंशन, सुइसाइडल टेंडेंसी। तो सबसे पहली बात अपना जो है हृदय बहुत मजबूत करके रखना। एज एन एंटरप्रेन्योर वी नीड टू हैव वेरी स्ट्रांग रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो दूसरा टच हो गया। तीसरा, हम 10 को 20 कैसे करें, उससे भी आगे है। पहले नहीं, आपने शायद गाना नहीं सुना 1 2 का 4 4 2 का 1। तो आप 10 को 20 करना चाहते हैं तो और 20 40। उसका एक सिंपल तरीका है मार्केटिंग के बारे में। पहले तो आप इंक्यूबेशन सेंटर आपको सपोर्ट करता है, नॉट जस्ट प्री इंक्यूबेशन, पोस्ट इंक्यूबेशन, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल सेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो एक जो Naukri.com और Zomato के कॉमन जो हैं फंडर संजीव बिखचंदानी साहब, उनका एक सिंगल लाइन है, कहते हैं यू चेज योर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स विल फॉलो। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टार्टअप्स है दे स्टार्ट चेजिंग इन्वेस्टर्स, वहां पे एक मुश्किल आती है। तो ये आपका पहला इंटेंट बहुत अच्छा है कि हम 10 को 20 कैसे करें। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स। वन इज पोजीशन। एयरपोर्ट पे जगह खाली है, कोई यूज करने वाला नहीं है, यू कैन टेक दैट स्पेस एट द एयरपोर्ट। Very good. So what I'm saying is you have to adopt a holistic set of marketing strategies. Go for content marketing, data-driven marketing, email marketing, network marketing, collaborative marketing, channel marketing, MLM marketing, retail networks. So you'll have to adopt the holistic model of multiple processes of marketing, and you can get in touch with Kumoji how to strive. तो 10 को 20 कैसे करें? इनके पास तो ये कहिए कि हम 20 लाख जनरेट कर रहे हैं, 20 करोड़ कैसे फंडिंग लें? So he has that orientation. So it's like putting your right question to the right places, I think. But then when Sarah said, ask any, so sure. So probably what you need to do is to have a holistic set of, consulting and guidance to make sure how you scale up your business operation. That's all. Thanks. I think the lady at about that. Yes. Yes, sir. सर, मेरा नाम शाज़िया कैसा है और मैं करीब 5 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरे स्टार्टअप को। और सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर एंड लेदर गुड्स, उसमें हम काम करते हैं। जो भी पुराने शूज़ हैं या टॉर्न शूज़ है, उनकी हम रिपेयरिंग, सर्विसिंग, इस तरह से क्लीनिंग करते हैं। तो अभी तक मैंने फंडिंग के लिए प्रॉपर जो जाना चाहिए वो मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे खुद पता था कि अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। बट पहले मुझे ये था कि पहले मुझे मार्केट में खुद सस्टेन करना है और पहले मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ताकि मैं दूसरे के पैसे को उसी कॉन्फिडेंस से वापस करूँ। तो अभी सस्टेनेबिलिटी आ गई है। दूसरा है कि अब हमारा जो मॉडल है वो B2B भी क्रिएट हो गया है और B2C भी क्रिएट हो गया है। B2B में अभी हमारी लिबर्टी के डायरेक्ट MD से हमारी बात हुई है, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। बस अभी थोड़ा सा उनको कन्विंस करना ये है कि वो मुझे लखनऊ, बैंगलोर या दिल्ली बुला रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा पूरा सेटअप यहाँ है, तो पहले मैं अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस करूँ, उसके बाद फिर फाइनल मैच पे जाऊँ। तो रेडचिप भी अब हमारे साथ, वहाँ भी हमारी बात जो चल रही है, तो अब मैं रेडी हूँ कि मुझे अब फंड चाहिए। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे किसी से भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे वैसे इन्वेस्टर से पैसा चाहिए जो मुझे आगे के नेटवर्क्स, कनेक्शन वो सब भी दिला सके, ताकि मैं इस जो मेरा जो कैटेगरी ये जो नया बन रहा है, इसकी मैं लीडर हूँ। बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या आता है? आप तो मतलब यहाँ बैठ सकती है, इतना अच्छा हो गया। तो मतलब सब कुछ ठीक है। और जो भी मैं आप सोच रहे हैं मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे थोड़ा होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है। मैं पब्लिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। अगर थोड़ा कंफर्ट हो जाती हूँ तो एक पॉइंट, माइनर से माइनर चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ मेरी ज़ुबान से, क्योंकि वो हर एक चीज़ मैंने ज़ीरो से मतलब एक तिनका करके मैंने सबको जोड़ के खड़ा किया है। तो मैं आपसे एक टाइम चाहूँगी ताकि मुझे आपका एक्सपीरियंस से या मुझे एक गाइडेंस मिले, ताकि मैं सही जगह अप्रोच कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो टाइम है वो अननेसेसरी वेस्ट नहीं हो।
बात कर सकते हैं कभी इन्वेस्टर्स। लेकिन आप ठीक सोचिए, मतलब आपके कंट्रोल में अगर है और आपका बिजनेस यूनिक है तो इंडस्ट्री वही ढूंढना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं और जो आपके विजन के साथ अलाइन है, जो भी विजन है आपके, जो भी मॉडल है उसके साथ अलाइन है। और उस मॉडल में जो भी तरह के हो सकता है, आपका ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता अब है। मेरे साथ मेरी टीम भी बहुत अच्छी और बहुत एक्सपीरियंस्ड जो हैदराबाद बेस्ड है वो जुड़ चुके हैं विद इक्विटी, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा। जी सर। Is there any more questions? ये कुछ ऑनलाइन से है उसको बोलिए सर। मेरा नाम राजेंद्र दास है और मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। 18 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ड्यू टू एक्सीडेंट जॉब लॉस हो गया और फिर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में वापस आ नहीं सका, क्योंकि मैं कभी किसी ऐसे बंदे को अपने अंडर में नहीं रखा जो मेरे को कौन रखेगा। 15,000 बच्चे अभी तक मेरे अंडर में काम कर चुके हैं, तो इसके लिए मैं कभी जॉब पे ट्राई नहीं किया। 10 साल पहले और 15,000 की नौकरी। तो हमने एक स्टार्टअप चालू किया, एडटेक स्टार्टअप है, फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिक पॉइंट ये है कि हम 299 रुपीज़ में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बच्चे जब भी मर्जी कोई भी क्लास कर सकते हैं। अभी CBSE है, विदिन 6 मंथ हम इंटायर बोर्ड लेके आ रहे हैं। साथ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस बच्चों को होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम लोग हॉस्टल लेके आ रहे हैं ताकि सेफ प्रैक्टिस। अगर बच्चे सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड उसको रिडीम करके अपने पढ़ाई का खर्चा खुद ले सकते हैं। तो आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर हम लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल लेके आएंगे। हमें वहीं पे एक ठीक है, हम बिजनेस सेल्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेलेबल बना सकते हैं, बट जो टेक्निकल चीज़ों में हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसे तो हमारा कंपनी मैंने कलकत्ता से रजिस्टर्ड किया है, 5 को फाउंडर हमारे हैं जो कि ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड से। तो अभी हम कोई मेंटर की तलाश में हैं या इंक्यूबेशन सेंटर की तलाश में हैं जो कि हमें NBFC के लिए सपोर्ट कर सके या NBFC का सॉल्यूशन दे सके, क्योंकि पे आफ्टर प्लेसमेंट अभी ना तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग आपस में भी इतना फंड्स रेज किए हुए हैं कि हम लोग अभी तक सर्वाइव करें। 35 लाख का कमिटमेंट है सीड फंड के लिए, तो आगे फंड्स की जरूरत नहीं है, बस कोई ना कोई मेंटर चाहिए। यहाँ पे है, आप इंक्यूबेटर है यहाँ पे मेंटर्स की यूज करें। नहीं, मैं फ्रैंकली मैं पिछले 3 साल से घर से नहीं निकला। हाँ, मैं इनके साथ लगता है साल भर से लिंक्डइन पे कनेक्टेड हूँ, बहुत बार बात हुआ, आज पहली बार मिला। तो ऐसा है हमारे साथ है कि काम के चक्कर में कनेक्शंस नहीं हो पाते हैं। आपको मेंटरशिप दिला सकता है, फाइनेंशियल वाला भी पार्टी होगी, उनका मतलब फोकस एरिया है एक तरह से। फुर्सत के समय आपको मौजी से जाकर मिल रहे हैं, उनके पास एक डाइवर्स लिस्ट ऑफ जो है मेंटर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, including funding, guiding, mentoring, financials, NBFCs, technology, mergers, acquisitions, accelerators. You think of something, people are there. Very diverse list. So, फुर्सत में आप समय लेके मिलिए। बस यही चाहिए। Sure, हमें thanks. और कुछ नहीं, इसी चीज़ के लिए। मेरा नाम मोहित डोकानिया है, मैं बल विकास से हूँ। वो एक
छोटा शहर है, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के गांवों के लिए एक बाजार है। तो मेरा भी स्टार्टअप में रुचि है, मुझे स्टार्ट करना है, मैंने अभी किया नहीं है। मुझे बहुत सारे क्षेत्रों में रुचि है, जैसे ईवी मार्केट, क्लाउड किचन, वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं बड़ी कंपनियों की बात करता हूँ तो उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत फंड भी है, बहुत टीम भी है, लेकिन स्टार्टअप के पास रिसर्च के लिए कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं है और ना उनके पास इतना फंड है कि वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा खर्च कर सकें। जैसे मान लीजिए कि यदि मुझे क्लाउड किचन खोलना है तो मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि पटना में टॉप 5 ऑर्डर फूड आइटम कौन से हैं? ये जानने के लिए मैंने रिसर्च किया, लेकिन इसका कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आप जब रिसर्च की मैं बात करता हूँ तो एक होता है इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च और उसके बाद होता है रीजनल रिसर्च। इंडस्ट्री रिसर्च में फिर भी मुझे उसका डाटा मिल जाता है, लेकिन रीजनल रिसर्च जैसे किसी शहर का यदि डाटा चाहिए तो वो मिलना और भी कठिन होता है। तो मुझे जानना था कि मैं रिसर्च के रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। आप डेटा रिसर्च की प्राइमरी बात कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। हाँ, 2-3 मतलब इसके सोर्सेज होते हैं। एक तो गवर्नमेंट के पास डेटा होता है जनरली और काफ़ी विस्तृत होता है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा वेबसाइट में जाके सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि डेटा है कि नहीं है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमेट्रिक्स और इकोनॉमी पे काम करते हैं, उनके पास अपना डेटा होता है, वो पब्लिश करते हैं डेटा। कभी वो प्राइस होता है, कभी वो प्राइस नहीं भी होता है, तो आप उनसे जाके डेटा ले सकते हैं। और जो आप अगर कोई स्पेशलाइज्ड डेटा है जो कि आप चाहते हैं कि जैसे जोमेटो का डेटा आपको होना चाहिए कि क्या है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप जोमेटो को अप्रोच करेंगे तो वो डेटा आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा, वो भी जो है दूसरे स्टार्टअप्स को हेल्प करना चाहते हैं तो आप जोमेटो से डायरेक्टली। और आप देखेंगे जो जोमेटो के CEO हैं, खास करके 31 दिसंबर को या कोई फेस्टिवल नाइट को, वो खुद ही पब्लिश करते हैं कि इतना ऑर्डर हो रहा है, इतना बिरयानी ऑर्डर हुआ, इतना ये ऑर्डर हुआ, इतना पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ, ये सब खुद ही वो पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर आप उनको, जैसे हम हमेशा स्टार्टअप बोलते हैं कि आस्क द राइट क्वेश्चन, यू विल गेट द राइट आंसर। अगर आप उनको प्यार से ढंग से पूछेंगे कि मैं किस रीजन से आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो शायद आपको डेटा मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैं गवर्नमेंट एजेंसियों से डेटा प्राप्त कर सकता हूँ, एजेंसी के वेबसाइट से। हाँ, वेबसाइट से, लेकिन मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि कौन सा डेटा किस संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो ये पुराने ज़माने में आप गूगल से कर सकते हैं, आजकल आप चैट GPT यूज़ करेंगे तो चैट GPT शायद आपको बता देगा कि ये डेटा यहाँ से आपको मिलता है। चैट GPT ग्लोबल के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन रीजनल या फिर इंडिया के मार्केट के बारे में उतना नहीं बता पाता है। देखिए, कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। आपके प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है और आप बहुत दूरदर्शी व्यक्तित्व मालूम पड़ रहा है। ऐसा है कि कुछ लोगों की जो रिसर्च है, उन्होंने कैसे रिसर्च की, बहुत लर्नेड लोगों की बात मैं बता दूं। एक एग्जाम्पल है, एक है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बहुत कुछ नहीं करना है, आप एक लोकेलिटी के चौराहे पे खड़े हो गए और देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोग, आजकल पता है डोमिनो, जोमेटो और स्विगी, वहाँ पे खड़े हो गए 4 घंटे में देखे कितने लोग जा रहे हैं। तो कितने लोग मैकडोनल्ड से जा रहे हैं, कितने स्विगी से जा रहे हैं, कितने जोमेटो से जा रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि हु इज डिलीवरिंग मोर ऑर्डर्स। और अगर मैकडोनल्ड से जा रहा है तो पता है मैकडोनल्ड समोसा नहीं बेचता, दे आर ओनली सेलिंग पिज़्ज़ास। तो आपको ब्रॉड आइडिया पता चल जाता है कि कौन ज्यादा है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको कि हम कहते हैं लर्निंग रिसर्च बाय ऑब्जर्वेशन। दिस इज वन। देयर आर अदर इंटरनेशनल रिसर्चर्स हु गेट वो लोकल स्तर पर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, सुबह में कबाड़ जो कूड़े वाला है वहां से कूड़ा निकाल के ले जाता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है उसको, 1 दिन 2 दिन सैंपल स्टडी के लिए उसके कूड़े में से देखेगा कि कितने पैकेट्स मैकडोनल्ड्स के हैं, कितने जोमेटो के हैं, कितने स्विगी के हैं, इत्यादि इत्यादि, और साथ में उसके स्लिप्स भी लगे पड़े होते हैं, वो जो पुर्जी रहती है वो भी उसमें स्टेपल करके कूड़े में डाल। तो थोड़ा सा अगर शोध वाकई करने का है तो कुछ सैंपल्स अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज को कर लें तो फाइनेस्ट डेटा मिल जाएगा। मेरी बात समझिए। लेकिन आप चाहें कि पका पकाया मिल जाए, नहीं, थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी होगी। आप समझ पाए कहाँ हम बता रहे हैं? इसके अलावा एक और, अगर यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, आप चले जाइए कबाड़ी वाले के पास, जिसके पास वो जो कार्टून खरीद के लाता है, वो कार्टून में वो सारे दिख जाएंगे किस किस कंपनी के कितने कार्टून, वहां से भी बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है। मेरी
जी, आपने रीजनल के बारे में तो बता दिया, लेकिन और भी यदि हमको डेटा इंडस्ट्री रिलेटेड प्राप्त करना है तो उन सबके लिए कोई अच्छी वेबसाइट? भारत में शोध के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं हैं। एक है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, ठीक है, और सारे क्षेत्र के अलग अलग हैं। जैसे क्राइम का है NCRP, तो हर सेक्टर स्पेसिफिक का अलग अलग बॉडी है, ठीक है। अब जैसे एक्सपोर्ट से डेटा लेना है तो IIFT है, वो जनरेट कर रहा है, DGFT है। तो अगर आप जेनरिक क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर का पूछना चाहें तो यू कैन टॉक, बिकॉज आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो देश में आज भी मैं बता दूं, भारत में आज भी जो है प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च में अन्य देशों की अपेक्षा जो खर्च है वो बहुत ही न्यूनतम है, न्यूनतम। तो आपको कुछ क्षेत्र में जिसमें आप घुसना चाहते हैं, आपका डाइवर्स इंटरेस्ट है, अब जैसे क्लाउड किचन है, आपको बड़ा आसान तरीका है, आपको पता लग जाए, कुछ नहीं करना, जो फटफटिया लेके चल रहा है ना, उसको रोकना है, कहता है बेटा कहाँ से लेके आ रहे हो, बताएगा कि हम कर गैया से लेके आ रहे हैं, अच्छा एग्जैक्ट एड्रेस बताओ, चले जाइए, उसके पास बाहर में कितने मोटरसाइकिल खड़े हैं, ठीक है, 10 मोटरसाइकिल खड़े, शाम को पहुंच जाइए जिस समय सब बैठ के अपना चलने के चलो यार चाय पीते हैं, बता देगा दिन भर में कितना ऑर्डर किस चीज कर लिया। तो थोड़ा सा और सैंपल बेस कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। ये तो आपके क्लाउड किचन की कहानी हो गई। तो बता देगा कि एक दिन में कितने डिलीवरी कर रहा है, और हमने एक दिन में 20 डिलीवरी की और वहां 10 मोटरसाइकिल वाला है, तो 20 into 10 यू कैन एक्सट्रापोलेट द डेटा। तो ये हो गया, ये क्लाउड किचन का। एक और नाम बताया था आपने, क्लाउड किचन का एक और एड्रेस बताया था आपने, ईवी मार्केट। ईवी मार्केट बड़ा सिंपल है, अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। 17 में हम लोगों ने एक नेशनल कॉन्क्लेव किया था, और उस समय जब ईवी मार्केट की बात की थी तो सब लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे कि व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, दिस इज इंडिया नॉट यूरोप एंड यूएस। आज 23 में देखिए शहर पे जब हम आज कार से आ रहे थे तो बगल में 2 गाड़ी थी, इनको दिखाया मैंने, दोनों ऑटो ईवी पे थे। तो मैं 17 से और 22 मात्र 5 साल में वी कुड ग्रो फास्टर देन एनी अदर इकोनॉमी। तो ईवी के सेक्टर में भी आप अगर ये जानना चाहते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस कितने हैं, उसकी डेटा इंडिया में जो है कुछ एजेंसीज हैं जिस पे काम कर रही हैं। जैसे बिहार में ब्रेडा है, तो ब्रेडा सोलर के रिलेटेड डेटा दे सकते हैं कितना इन्होंने लगाया है। और भी सोलर की एजेंसीज हैं, उनकी जो एनुअल जनरल रिपोर्ट है उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी बारीकियां उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती हैं। तो you'll have to start reading the detailed auditor's report and annual general report, जो उनकी रिपोर्ट होती है उसको पढ़ना शुरू करें। This is one source. Second source, EV के जितने भी आज की डेट में कितने कंपनीज हैं, बहुत कम कंपनीज, अभी टाटा इज लीडिंग इन EV। तो एक है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आपको पता है, एक गाड़ी वाले को रोकिए, 5 को रोकिए, कहाँ खरीदे थे जी बता देगा। 5 एजेंसी शहर में 20-25 से ज्यादा एजेंसीज ने, उनको जाके स्टडी कर लीजिए उसने कितना बेचा अभी तक, पता लग जाएगा। अब उसमें कौन सी बैटरी यूज कर रहे हैं, एक को रोकेगा तो बता देगा पिछली बार कब चेंज किया था, कौन कौन से 90% आज के डेट में चार्जिंग घर पे कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन अभी बिल्डअप स्टेज पे हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस बहुत क्लियर नहीं है, इवॉल्विंग स्टेज में। तो यू गेट, जिस दिन आप कसम खा लेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए, अगले दिन मिल जाएगा, बस कसम खाने की देर। अभी तक कसम खाए कोई डेटा पाने के लिए नहीं, कसम खा लिए, जिस दिन कसम खा लेंगे you'll get every data, it's available, everything is। कुछ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चाहते हैं कि बना बनाया मिल जाए, तो थोड़ा सा उसमें भी वक्त लगेगा। इंडिया में अभी उतने सारे स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं आज की तारीख में, जो कि हर चीज का डेटा आप बोलिए और आपको डिलीवर करते हैं। देयर आर रिसर्च एजेंसीज, उनको अगर आप पैसे देते हो करके दे देंगे, बट बेस्ट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड 2-3 और जो सोर्सेज होता है जो कंपनीज अडॉप्ट करते हैं, और दे हायर फील्ड रिसर्चर्स टू गेट यू द डेटा। आपने जो ऑब्जर्वेशन से रिसर्च की बात की है वो बहुत ही अच्छा था और मेरे बहुत काम आएगा। धन्यवाद। रिसेंटली सर आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक, और वो इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली अभी तक कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है? अभी हमने इंग्लिश शायरी में इन्वेस्ट किया है। इंग्लिश शायरी एक स्टूडेंट स्टार्टअप है जो कि इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स सिखा रहा है लोग। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर में भी है, सब लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और बहुत स्केलेबल मॉडल लेके आए वो लोग कि कोई भी आदमी इंटरनेट पे किसी और इंग्लिश लर्नर के साथ एक साथ सीख सकता है और अपनी लैंग्वेज बढ़ा सकता है, और उनको उस लेवल तक लेके जाना ताकि वो जॉब इंटरव्यू में फेल ना कर सके। बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं कि जॉब इंटरव्यू में फेल ना करे, तो मुझे अच्छा लगता है। सर इनका कहानी बताइएगा, कैसे फाउंडर्स आपको अप्रोच किए?
तो मिला एंजल नेटवर्क में उन्होंने अप्रोच किया था कि हमने ये स्टार्टअप बनाया है और मुझे लगा कि मतलब एक तो बिहार से स्टूडेंट स्टार्टअप देख के ही मैं खुश हो गया कि स्टूडेंट स्टार्टअप थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट इस तरह से कर रहे हैं। जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमने ये देखा कि हमारे सीनियर्स को इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि उनको इंग्लिश बोलने नहीं आया कि अपने आपको इंट्रोड्यूस कैसे करें, उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज या मैकेनिकल का नॉलेज तो पहुँचे ही नहीं, वो तो हुआ यू में ही फेल हो गए एक तरह से। तो लगा कि नहीं हम भी फेल हो जाएंगे, तो हमें कुछ बनाना चाहिए कि इंग्लिश में कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्किल्स को। तो उन्होंने कुछ इंग्लिश के लेसन्स और कैप्सूल्स बनाए, फिर उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जो कि दूसरों का सुनेंगे। तो अभी आप वहाँ जाके एक लेसन पढ़ेंगे तो एक आपके पास शीट आएगी, उसको आप पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा और मैं आपको दूंगा नहीं आप यहाँ पे गलती करते हैं, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। तो जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका इंग्लिश का, वैसे वैसे स्किल आपका बढ़ जाएगा। और जनरली आपके कॉलेज में या बिहार में क्या आप सारा टाइम फैमिली में हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंग्लिश आज मुझे अच्छा लगता है। एडुडोर में इन्वेस्टमेंट किया हमने, जो कि प्राइवेट स्कूल्स का हायरिंग का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और ऑलरेडी 18 स्टेट से ऑलरेडी उनके पास कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत कम मार्केटिंग से आ रहे हैं। तो मतलब है कि जो स्कूल्स हैं उनको बहुत डिमांड है कि अच्छा हाई क्वालिटी टीचर हायर किया जाए और उनके पास टीचर्स भी हैं 5-6 हज़ार के प्लेटफॉर्म पे और स्कूल्स भी आ रहे हैं उनके पास। तो मुझे अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं। अभी जो 38 रेस्टोरेंट की बात की है तो सर उसमें आपका कितना कैपिटल से उनमें इन्वेस्ट किया और कितना इक्विटी आपने लिए सर? तो जब आईपीओ में जाएंगे तब देखेगा। Recently that will be disclosed in the red herring prospectus. Start learning, reading red herring prospectus on the various stock exchanges website. मैं बोल सकता हूँ कि एडुडोर का ऑलमोस्ट जैसे 4-5 महीने से उनका हमारा मतलब मेंटरिंग के लेवल पे है इस समय, मेंटरिंग और प्रीस्टीज लेवल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब वो जो है एक बड़े एंजल ग्रुप के साथ बात करें, 1.5 करोड़ की फंड रेज की बात करें, हो सकता है कि उनका काफ़ी अच्छा मतलब पैन इंडिया, अगर हम देखते हैं कि बिहार से पैन इंडिया स्टार्टअप कौन सा बन सकता है, तो मुझे लगता है एडुडोर बन सकता है, इंग्लिश शायरी बन सकता है, रोडवेज डेफिनेटली बन सकता है, हनुमान डेफिनेटली बन सकता है। और भी 2-3 है, एक बेगूसराय में शुरू किया फार्म ब्लूम करके शुरू किया, जो कि अगर आप लोगों को पता हो कि जब फार्मर अपना रबी या खरीफ का क्रॉप करने जाता है तो मार्केट वाले जो है सारा ब्लैक बाजारी करके मार्केट का जो भी रेट है सीड्स का, डीएपी का, पोटैश का, ये सारे बढ़ा देते हैं, 60 to 70% ब्लैक कर देते हैं और फार्मर को खरीदना ही उसका गला फंसा होता है कि नहीं खरीदेंगे तो मेरा टाइम खराब हो गया। तो उन्होंने एक फंडिंग को यूज़ करके एक तरह से ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ब्लॉक कैपेसिटी क्रिएट कर देते हैं और वो 70% का जो ब्लैक मनी जाता है उसके बजाय में वो 10-12% का वहाँ से सर्विस फी ले रहे हैं वहाँ से और काफ़ी स्केल करते हैं। तो 500 फार्मर्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे और मुझे लगता है कि वो आराम से 5,000-50,000 फार्मर्स के साथ जा सकते हैं। जिस तरह का देहात है उस तरह का बड़ा स्टार्टअप बन सकता है और फार्मिंग में लगता है मुझे कोई काम करे जहाँ पे कि फार्मर को बेनिफिट मिले तो उसको सलूट करना चाहिए, उसको सपोर्ट। थैंक यू सर। और मैं भी एक्चुअली मिथिला से ही बिलोंग करती हूँ और हम लोग लाइक सर्विस सेक्टर में हैं। हमारा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स और गार्जियंस को कनेक्ट करते हैं और जहाँ पे लाइक लोग इंस्टीट्यूट्स को कोई फैकल्टी एक्सपर्ट्स टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है या गार्जियंस को अपने बच्चे के लिए 1-to-1 सेशन के लिए लाइक टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है और लाइक तो हम लोग कनेक्ट करवाते हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइक अभी करेंटली अप्रॉक्स 4,000 to 5,000 टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं और हमारा 3 सिटीज़ में ऑपरेशनल भी है लाइक दरभंगा, कोलकाता और हम लोग अराउंड 2 ईयर से वर्क कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो बेसिकली मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम लोग लाइक इमर्जिंग स्टार्टअप हैं तो मतलब मेन प्राइम फोकस हमारा क्या होना चाहिए, जैसे मार्केटिंग पे होना चाहिए या टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा होना चाहिए या सेल्स को लेकर होना चाहिए? मेन फोकस जो आपका कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ। अगर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो आपका फोकस कैंडिडेट का रिज्यूमे इजी बनाने में। अगर उनका प्रॉब्लम है कि मैं कैंडिडेट से बात नहीं कर पा रहा हूँ तो आपका होना चाहिए मैं कैंडिडेट का इंटरव्यू कैसे ऑनलाइन करा दूँ। आप अपने कस्टमर की सुनोगे तो बाकी सब अपने आप चलता रहेगा। बेसिकली सर ट्यूटरिंग सेक्टर है कि बहुत बड़ा सेक्टर है बट इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। तो बेसिकली लाइक he is the co-founder of the company and I am the founder of the company. तो basically the sector is unorganized, काफ़ी बड़ा मार्केट है,
it needs lots of improvisation in the tutoring sector. Yes. And that is why you are the founder. क्योंकि unorganized है इसलिए आपको मौका मिला हुआ है कि आप उसको organize कर दीजिए. Yeah, that's what we are doing, sir. Good. सर मेरा जो सवाल है ये बेस्ड ऑन मतलब मेरा कोई फंडिंग पे सवाल नहीं है, बट यहाँ पे शायद आपका एक्सपीरियंस मुझे मेरा आंसर दे पाएगा। तो यहाँ जितने लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं, मैं सबसे उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर लूम्स जो कंपनी है, हम हमारा 2 मीडियम है, हम 2 ऑडियंसेस को सर्व करते हैं, ठीक है। हम MSMEs को सर्व करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को सर्व करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, ठीक है, और इन्हें नीड होती है। सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट में इन्हें नीड होती है, ये मेरा मतलब बट इनका जो पॉकेट साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया अभी कि वो ज़्यादा पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारा दूसरा ऑडियंस है जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनका एक अच्छा टारगेट बेस है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँगी, चाहे बिहार बेस्ड कंपनी ही है, जैसे प्रमोद हो गया या हरीलाल हो गया या बीकानेर हो गया, इस टाइप के जो स्वीट शॉप्स हैं, या मल्टीपल सेक्टर में, ये तो मैंने फूड की बात की। तो हमारा जो रेवेन्यू आता है कंपनी में वो इन बड़े कंपनीज से आता है, और जो हमारे जो एक नीड वाला सेक्टर है वो हमारे MSMEs हैं, जिनको हम केटर करना चाहते हैं। वो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ एक प्रॉब्लम लाई करता है। तो सर जब मैं अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाती हूँ और वहाँ से रेवेन्यू जब लाती हूँ, तो एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जब मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं आपको एंड टू एंड सर्विस दूंगी, ठीक है, वेयर आई कैन कंसल्ट यू इन द क्रिएटिव डोमेन, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए हम बता सकते हैं, मार्केट में पोजीशन कर सकते हैं, हम आपको प्रिंट दे सकते हैं उस चीज़ का। तो उनका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि मैं ये चीज़, और 99% टाइम्स ये होता है कि मुझे ये चीज़ मैं सोर्स ऑलरेडी दिल्ली से कर रहा हूँ, कोलकाता के मार्केट से कर रहा हूँ, मुंबई से कर रहा हूँ, ठीक है, वाई टू रिलाई एनीवन इन बिहार, ठीक है। ठीक है, मैं उन्हें एक इमोशनल एंगल देती हूँ कि वाई नॉट बूम द इकोनॉमी ओवर हियर एंड समहाउ यू आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट एज वेल। सो बट द चैलेंजेस स्टिक्स, ठीक है, मतलब प्राइस एक फैक्टर होता है, बट हमारी प्राइसेस को मैं उस लेवल पे लेके चली जाती हूँ कि और आपका पेन भी रिड्यूस करती हूँ कि आपको जो वहाँ पे कम्युनिकेट करना होता है, जो चीज़ आपको दिल्ली से मंगवाना होता है, उसका एक पेन होता है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीड्स फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो वो वहाँ पे मैं उस चीज़ को सॉल्व करती हूँ। फिर भी वो एक साइकोलॉजी इशू यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो मैं उसको बिजनेसेस मॉडल में, क्योंकि वो इमोशनल एंगल नहीं होता है ज़्यादा बिजनेस में, B2B मॉडल में ज़्यादा इमोशनल एंगल नहीं होता, तो उनको कैसे केटर कर सकती हूँ? ट्रस्ट से, क्रेडिबिलिटी से, आपका उस बिजनेस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्रेडिबिलिटी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर वो दिल्ली से खरीद रहा है और यहाँ से नहीं खरीद रहा है, तो इसका मतलब है दिल्ली में कंफर्ट है उसका कि मेरा काम हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा, तो एक्सपर्टीज मिलेगी। क्या आपका एक्सपर्टीज उस लेवल से है? क्या आपके पास केस स्टडी है पुराने कस्टमर? क्या आपके पास कस्टमर टेस्टिमोनियल है? क्या आपके पास रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का कुछ है? B2B मार्केटिंग और B2B सेल्स में क्रेडिबिलिटी और आपकी स्किल सेट्स की क्रेडिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर लोकल रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे हैं और वो ट्रस्ट कर रहा है किसी रिमोट, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका स्किल सेट सेम लेवल पे है या उससे बेटर है, या कोई वेरिएबल में आप जो भी वो सर्विस दे रहा है उनको उससे बेटर कर सकते हैं। प्राइस इज ऑलवेज नॉट इम्पोर्टेंट। तो क्रेडिबिलिटी के देखिए आप क्रेडिबिलिटी कहाँ पे आपको गैप दिख रहा है उसमें, वो जरूरी है। सर कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन हैं क्या कुछ? हाँ बोलिए। सर मेरा नाम संतोष कुमार है और हम लोग डेयरी फार्मिंग में काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग 10 काउ का एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है, और जो हमने 3-4 सालों में काम करके जो एक्सपीरियंस किया वो डेयरी फार्मिंग एक लेबर और कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव को हमने खत्म इसलिए किया कि जो किसान है उसी को हमने मालिक बना दिया बैंक से लोन दिला के, और कैपिटल बैंकों के पास बहुत बड़ा है। अगर फिर मैं बात करूँ कि बिहार का, तो SFDC की जो मीटिंग होती है उसका मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने टारगेट किया था कि इस फाइनेंस ये देने मेरे को 600 करोड़ का लोन डेयरी में करना, बट टोटल सैंक्शन अमाउंट लेस देन 3 करोड़ था। और ऐसे हमने कुछ बहुत सारा मेहनत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से
मुद्रा डेयरी के अंदर 5-6 लोन कराया है महिला किसानों को, और बैंक के लिए तो हॉट केक सेलिंग प्रोडक्ट है, और वो इस तरीके से कि आपके साथ एमओयू करते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ सर कि हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, लाइक कहीं को डेयरी फिनटेक या कुछ बैंक नॉर्म्स बैंक का लाइसेंस, या जस्ट उनके साथ एक टाई अप करूँ कि आप मेरे को इतना फंड दो मैं इसे सैंक्शन, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर लेके चले सर? बैंक बहुत है जी, आज की भी मीटिंग में जो हमारी अभी हुई थी सर थे राना सर भी थे, तो उस पर CBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सीधा बोला कि हम आपके साथ एमओयू करते हैं, ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारे साथ एमओयू साइन है, तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए फाइनेंशियल को लेके ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को कोई सीए बेटर बता पाएंगे या लॉयर आपको बेटर बता पाएंगे, बट डेयरी में मेरा अपना इंटरेस्ट है। हमने एक सिंगला विलेज में इन्वेस्टमेंट भी किया, और मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट हमारे क्षेत्र में डेयरी की बहुत बड़ी डिमांड है, और फ्रेश मिल्क और हाई क्वालिटी मिल्क की काफ़ी शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि पटना से मुजफ्फरपुर सुधा जो है सप्लाई नहीं दे पा रहा है, और जो हमने उसका इकोनॉमी देखा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 लीटर में 1 करोड़ का रेवेन्यू बनता है। तो अगर आप 30,000 लीटर में चले जाए तो 100 करोड़ का आपका रेवेन्यू बनता है सीधा सीधा, 30% के करीब का मार्जिन रहता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, एज अ बिजनेस कैटेगरी बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर आपको सीए या लॉयर बताएंगे क्या स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा आपके मॉडल के लिए। बैंक्स के अलावा जो NBFCs हैं, खास करके जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं फाइनेंस करने में, तो आप उनको एक बार कंसल्ट कीजिए। जैसे इसमें है कुछ तो हर एक सिटी 100 करोड़ का मार्केट है, जैसे पटना में अगर आप 30,000 लीटर डेली का सेल कर रहे हो तो ये मतलब 150 करोड़ का मार्केट है, और ऑलरेडी पटना में भी 6 लाख लीटर मिल्क सेल हो रहा है, गया मुजफ्फरपुर सारा मार्केट है, तो बैंक से तैयार। Any questions from the online fraternity? Anybody would like to ask questions? Any questions from the online members? कुछ कमेंट्स में आए हुए क्वेश्चन। One lady has asked a question. Savita has asked, kindly help us to understand your future plans as well. Mithila Angel Network, future plans to support these startups from marginalized areas. Thanks. थैंक यू सो मच सत्ता जी। फ्यूचर प्लान्स में तो हमारा फोकस अभी मिथिलांचल पे ही है, एक तरह से मिथिला एंजल नेटवर्क में, और एक हमें लगता है कि दरभंगा में खास करके और मिथिला में इंक्यूबेटर्स शायद अभी डेफिशिएंट है, तो एक मेरे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम वहाँ पे इंक्यूबेटर कैसे शुरू करें, और होपफुली इसी ट्रिप में हम बात करेंगे। WIT से बात हो रही है, दरभंगा कॉलेज इंजीनियरिंग से बात हुई है, LNU से बात हुई है कि कोई होस्ट कर दे, तो हमारे पास जो हमारे 700-750 लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो मेंटरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे रिमोट मेंटरिंग ऑफर कर सकते हैं, सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा ये मानना है कि 1 साल के अंदर में वहाँ पे STPI शुरू हो जाएगा, तो दरभंगा से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है, तो क्या हम वहाँ पे एक अपना यूनिट डाल सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करेगा। तो आप समझिए कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का यूनिट हो गया, एक तरह से इंक्यूबेशन का यूनिट हो गया, और बीच में अगर हमें टैलेंट डेवलपमेंट के लिए, जैसे कुछ आप पाइथन का काम कर रहे हैं मान लीजिए, बहुत हाई स्किल का एक प्रोग्रामिंग का हम अगर अकेडमी शुरू करेंगे वहाँ पे, जैसे सुपर टकी चलता है, तो क्या हम इतना तेज लोग का टैलेंट बढ़ा देंगे कि जॉब्स उनके लिए आसान हो, कि हो सकता है उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग इस लेवल पे चली जाए एक पर्टिकुलर स्किल सेट में जो हाई डिमांड है। तो हम ये तीनों कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम दरभंगा में 2-3 साल में बना के रखें। Thank you for that, sir. I think thanks for your valuable request to Kumar Kumarji to extend formal vote of thanks. धन्यवाद। अरविंद जी जो दरभंगा में खोलना चाह रहे हैं, तो मैं इनको कनेक्ट करा दूंगा वहाँ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के जो हैं प्रिंसिपल, वहाँ पे आप साथ मिल करके उनके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर आप कर सकते हैं। उसमें CI प्रमोद तिवारी जी से बात हुई है, संदीप तिवारी, हाँ ठीक है, तो अच्छा है, वो चूँकि इंक्यूबेशन के ही फील्ड के हैं, तो ये बहुत अच्छा भी है और बहुत हमारी ज़रूरत भी है बिहार के लिए और उस इलाके के लिए। साथ ही हम जो है बहुत धन्यवाद देते हैं अरविंद जी को कि ये यहाँ के स्टार्टअप पे बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ CIMT के तो कई स्टार्टअप में इन्होंने मिथिला एंजल में फंड किया है, इसमें दिलखुश एक है। तो
रोडवेज दिलखुश नहीं है, और हनुमान में भी है। तो इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं कि अरविंद जी को हमारे यहाँ फाउंडेशन का जो एडवाइजरी बोर्ड बन रहा है, उसमें अरविंद जी हमारे हमारा MOU भी हो रहा है। हमारे हम लोग यहाँ के बिहार में जो भी काम कर रहे हैं बिहार के साथ, या जो बहुत एग्रेसिवली स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उन सबको हम लोग अपने साथ जो है जोड़ें, आप ही लोगों के लिए यहाँ के स्टार्टअप को उसका फायदा मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के लिए अरविंद जी आए, और हम आगे भी इनके साथ जो है इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। जब भी ये बिहार आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका जो है हमारे स्टार्टअप्स के साथ यहाँ भी और CIMP में भी इनके अनुभव का हम लोग लाभ उठा पाएँ और स्टार्टअप को लाभ दिला पाएँ। और हम लोग स्वागत करना चाहेंगे से। कुमार जी, थैंक यू सो मच CIMP की तरफ से और बिहार की तरफ से होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।